A very good morning to one and all students. Welcome to your TSN English class. This is the second video of chapter number 4, Albert Einstein at School, from your book Snapshot. So students, let's come to the point here, or the paragraph here. Here is the paragraph. Albert felt miserable. But before this, I would like to tell you about the previous one, that what we have read earlier, that here the Patrick Pringle, the writer of the chapter, described the circumstance which led to Albert Einstein expulsion from German school. So we have read about the first instance, or you can say that how Albert Einstein was not interested in that studying that part of like facts and figures. He is quite interested in something else. So instead of those numbers and dates, he is interested in those facts one. So according to Albert Einstein, so this the greatest physicist, so here he is more interested in something else than what teacher taught to him. And their teacher told him that you are so ungrateful, and call your father or ask your father to take you away from the school. So let's read the remaining part. Albert felt miserable when he left the school that afternoon, and not that it had been a bad day. Most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away. But there was no point in asking, he knew even asking, he knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. So here Albert Einstein described that he felt miserable. First of all, that जब वो स्कूल से दिन में गया तो ही फेल्ट वेरी वेरी मिजरेबल, या उसे बहुत दुख महसूस हुआ. नॉट फॉर दैट कि उसका ये दिन बुरा था, बट फॉर दैट कि उसके मोस्ट प्रोबेबली डेज जो हैं वो स्कूल में बुरे ही जा रहे थे. एंड ये सेकंड थॉट उसके माइंड में तो फर्स्ट थॉट तो ये था कि ऐसा ही नहीं कि केवल आज का दिन बुरा था, ये था कि उसके मोस्ट प्रोबेबली डेज बुरे जाते थे स्कूल में. एंड सेकंड थॉट जो उसके माइंड में था वो ये कि फॉर नेक्स्ट डे, लाइक ही इज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे, that for next day he have to face the same situation, or he have to like be there on the same place. So that it had been a bad day for him, and most of the days were bad anyway, because he had to go back to the hateful place the next morning, and he only wished his father would take him away. And उनकी एक ही wish थी that his father would take him away from that school, but there was no point. So he again explained that there was no point of discussion with his father, कि उसको अपने father से ज़्यादा discuss नहीं करना है ये सब कुछ, because even उसे पूछना भी है, because he already knew the answer of his father, that he knew whatever the answer would be, he would have to stay until he had taken his diploma. So according to his father, जब तक वो अपना diploma complete नहीं कर लेता, he have to stay back here only in the school. So let's read on to the next paragraph. Going back to the lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and the squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came and drunk and beat her. So, but at least, so here in this paragraph, गोइंग बैक टू द लॉजिंग्स, जब वो स्कूल के बारे में छोड़ के अपने फादर के बारे में सोचना छोड़ के अपने लॉजिंग्स में वापस जाते हैं, और जब वो लॉजिंग्स में वापस जाते हैं, so what he is going to think up there, that his father had so little money to spare that Albert, उसके फादर के पास घर का खर्चे के बाद सिर्फ इतना ही मनी बचता था एल्बर्ट पे खर्च करने के लिए, that he had been found a room in one of the poorest quarters of Munich,
कि वो उसके लिए म्यूनिक में कोई एक पुअरेस्ट क्वार्टर का अरेंजमेंट कर पाए, एंड ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड। और उन क्वार्टर्स या पीजीज में उसको बिल्कुल भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को बुरा नहीं लगता था दैट ही people gave him, or there he had bad food, lack of comfort was there, and even the dirt and the squalor, उससे dirt और वहाँ जो खराब खाना या वहाँ जो धूल और गंदगी की भी वो ज़्यादा he didn't mind all these things, but he hated the atmosphere। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को उधर उस जगह का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बिकॉज ऑफ द स्लम वायलेंस, बिकॉज वहाँ पे जो हिंसक बिहेवियर लोग आपस में एक दूसरे से करते थे। एंड हिज लैंड लेडी, और उसमें वो एग्जाम्पल दे रहे हैं दैट हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था कि लैंड लेडी जो अपने बच्चों को रेगुलरली मारती थी, एंड एवरी सैटरडे, और हर सैटरडे हर हस्बैंड केम एंड ड्रंक एंड बीट हर। जब उसका हस्बैंड हर सैटरडे को घर आता था, ही वॉज टोटली ड्रंक एट दैट टाइम एंड ही ड्रंक एंड बीट हर। तो उसका हस्बैंड, लैंड लेडी का हस्बैंड, उसे मारता था। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन I can say, said Yuri. So here is the entrance of his Albert Einstein friend here in the chapter. His name is Yuri. So Yuri Albert Einstein को lodgings में क्या mention करते हैं कि at least तुम भगवान का शुक्र करो that you have your own room to settle down here, when he called round in the evening. So जब वो इवनिंग के समय यूरी जो है वो शाम को जब उससे मिलने आता है, तो वो एल्बर्ट को ये बोलता है कि एटलीस्ट तुम शुक्र करो तुम्हारे पास खुद का रूम है यहाँ रहने के लिए। एटलीस्ट यू हैव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे ऑल आर पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उसे कम से कम तुम इन मतलब, तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी को क्या कहते हैं कि कम से कम तुम जहाँ रहते हो वो जगह पे सिविलाइज्ड पीपल तो रहते हैं, भले ही से वो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पुअर हैं, बट दे आर लाइक सिविलाइज्ड वन। बट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ गरीबी तो है ही है, बट दीज इस लॉजिंग्स में लोग सिविलाइज्ड भी नहीं हैं। सो वो यूरी के अपार्टमेंट या जो भी जहाँ लॉजिंग्स होती हैं उनकी तारीफ़ करते हैं एल्बर्ट, और ख़ुद के लॉजिंग्स के लिए वो बैड फील करते हैं। एंड दे आर नॉट सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुअल। सो यूरी रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो लोग सिविलाइज्ड हैं? मैं जहाँ रहता हूँ वो भी सिविलाइज्ड नहीं है। दैट डिड यू नॉट हियर वन ऑफ देम, क्या तुमने सुना नहीं कि उनमें से एक ने आपस में एक दूसरे को, जब उन लोगों के बीच में फाइट हुई थी, दैट इज द्वंद्व काइंड ऑफ, तो उस डुअल फाइट में उन्होंने एक दूसरे को मार दिया था। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। तो एल्बर्ट उससे पूछते ओके फिर जो मरा था उसके साथ क्या हुआ, मुझे आगे ये एक्सप्लेन करो। देन we move on to the next one here. So इस पैराग्राफ में एल्बर्ट और यूरी जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं दैट विच तुम जहाँ रहते हो वो प्लेस ज़्यादा सिविलाइज्ड है या मैं जहाँ रहता हूँ वो प्लेस ज़्यादा सिविलाइज्ड है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सो nothing, of course, he is even proud of it. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. He's upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. Oh, exclaimed Albert, and these are the students. Well, you will be a student one day, said Yuri. So, here in this paragraph, nothing of course. So जो एल्बर्ट है वो उससे पूछते हैं ओके जिसने जिसको मार दिया था, सो जो किलर है जो मर गया वो तो मर गया, सो जो किलर है उसके साथ क्या हुआ था। सो यूरी बताते हैं ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट। सो वो जो किलर है उसे अपने आप पे प्राउड है दैट ही इज़ ओनली वरी दैट अथॉरिटीज़, उसकी केवल एक ही चिंता है कि अथॉरिटीज़ ने उसे ये बोला है कि इस तरीके की ड्यूअल्स फाइट उसे नहीं करनी है। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस, और वो इसलिए भी अपसेट है बिकॉज ही इज़ नॉट हैज़ंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसके फेस पे एक सिंगल स्कार भी नहीं है, सो दैट वो स्कार को लोगों को बैज ऑफ ऑनर की तरह दिखा पाता कि ओके मैंने ये फाइट लड़ी थी और इस फाइट में मैं जीत गया था, या मैं मेरे साथ मैं जो है वो जीता था, या आई एम द वन हु किल्ड दैट मैन। एंड ओह एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, तो एल्बर्ट कहते हैं ओह ऐसा सोचता है वो, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और तुम इन्हें स्टूडेंट्स कहते हो। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। तो यूरी उसे कहता है कि अच्छा तुम भी एक दिन इसी तरीके के विद्यार्थी या स्टूडेंट बनोगे। इट्स
I doubt it, said. Now move on to next page, students. I doubt it, said Albert gloomily. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa that the same next time she come to Munich. Normally she lived in Berlin, where her father had a business. So वो कहता है एल्बर्ट आई डाउट इट सेड एल्बर्ट ग्लूमिली. सो एल्बर्ट जो है वो बहुत ग्लूमिली हियर मीन्स विथ लाइक आप कह सकते हैं निराश होकर. तो एल्बर्ट बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल नेवर पास द एग्जाम फॉर स्कूल डिप्लोमा. मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा के एग्जाम्स क्लियर कर पाऊँगा. So he told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. और ये सब कुछ वो अपनी cousin Elsa को बता चुका है जब वो अगली बार वो कहाँ आई थी, म्यूनिक आई थी. And she lived in Berlin where her father had a business. अब वो बर्लिन में रहती है जहाँ पे उसके फादर का एक बिजनेस है. I'm sure you could learn enough to pass the exam, Albert, if you tried, she said. और वो एल्बर्ट को हमेशा ये कहती है कि एल्बर्ट मुझे पता है कि तुम एग्जाम्स क्लियर कर लोगे अगर तुम जो है एग्जाम्स में कुछ सीख सकते हो या कुछ लर्न कर लोगे तुम, तो इतना तो तुम्हारे पास है ही है. तो आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स. तो एग्जाम्स पास करने के लिए जितना ज़रूरी है आई एम श्योर तुम उतना लर्न कर लोगे. शी सेड आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्ट्यूपिड देन यू आर. तो एल्सा उसे क्या कह रही है, डायरेक्टली स्ट्यूपिड कह रही है कि आई नो मच मोर बॉयज़, जो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्यूपिड हैं, एंड हु गेट थ्रू, और जो कि इस सब को पास कर चुके हैं. देन दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स. सो एल्सा उसे क्या कहती है कि तुम्हें एग्ज़ाम्स के लिए जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाया जाता है उसे समझना नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू अंडरस्टैंड दैट, देयर इज़ नो नीड टू जस्ट whatever you are taught, just able to repeat it. just तुम्हें उसे there is no need to know anything, just तुम्हें उसे repeat करते जाना है, repeat करते जाना है, repeat करते जाना है, and then you will be able to pass your exams, और तुम अपने exams pass कर लोगे. that's the whole trouble, said Albert. I'm no good at learning the things by heart. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ मी, दैट आई एम नॉट गुड लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, बिकॉज मैं जो है वो किसी भी चीज़ को रट नहीं सकता. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट. तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ इस चीज़ों में गुड होने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. ओनली द थिंग इज़ दैट एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट. अगर कोई भी पैरट की तरह ये सब चीज़ें क्रैम करेगा तो इट विल बी ईजियर फॉर हिम और हर टू डू इट लाइक दैट. सो जस्ट डोंट ट्राई. So just don't try, and yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. So Elsa क्या कहती है कि मुझे पता है that तुम्हें जो है yet I always see you with a book under your arm, कि मैं हमेशा तुम्हारे आर्म में एक बुक देखती हूँ. What is the one you are reading? तुम क्या पढ़ते हो? A book on geology, rocks and things. Do you learn that? No, we have hardly any science at school. Then why are you studying it? Because I like it. Is not that a good enough reason? Elsa said. So here जब एल्सा उनसे पूछती है कि तुम एक बुक हमेशा अपने हाथ में लेके चलते हो तो ये बुक क्यों पढ़ते हो, तो वो कहते हैं जियोलॉजी बुक है. पूछती है जियोलॉजी तो तुम्हारे कहीं सब्जेक्ट में नहीं है, साइंस. तो एल्बर्ट उसे रिप्लाई करते हैं कि आई नो दैट इज़ नॉट इन माई सब्जेक्ट, बट फिर भी मुझे वो बुक अच्छी लगती है इसीलिए मैं पढ़ता हूँ. तो एल्सा उसे कहती है कि ये कोई रीज़न नहीं हुआ. यू आर राइट अप ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा. तो वो कहती है कि एल्बर्ट ठीक है तुम्हें अच्छा लगता है या तुम कहते हो तो तुम ये पढ़ लोगे ये बुक ऑन जियोलॉजी, बट तुम्हें ये डिप्लोमा में बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली. अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक, एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप. और म्यूज़िक ये जियोलॉजी की बुक के बाद या साइंस की बुक के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग जो बचता है वो है, या जो उन्हें कंफर्ट देता है, दैट इज़ म्यूज़िक. और ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, वो अपना वायलिन रेगुलरली बजाते हैं जब तक उनकी लैंडलेडी आकर उन्हें मना नहीं करती है. दैट विलिंगनेस गेट्स ऑन माई नर्व, शी सेड. देयर इज इनफ नॉइज इन द हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग. और ऑलरेडी उस घर में बहुत ज़्यादा बच्चों की आवाज़ आती है. एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग. तो एल्बर्ट कहते हैं ज़्यादातर मैंने लैंड लेडी को खुद को देखा है
कि अधिकतर समय वो बच्चों को शोर मचाने पे या हाउल करने पे मजबूर करती है, बट वो इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम योर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ 6 month से अकेला रह रहा हूँ म्यूनिक में, एंड मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं यूरी को, इट इज़ अब्सर्ड, मेरे लिए बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, एंड आई डोंट वांट टू बी हियर at this place, so I should go on like this, and in the end it will turn out that I have been wasting my father's money। और एंड में जाके मुझे पता चलेगा कि मैं अपने फादर का मनी वेस्ट कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। हम सबके लिए अच्छा होगा कि मैं यहीं ये सब एजुकेशन वाला सिस्टम जो है ये बंद कर दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। तो यूरी होता है वो उनसे पूछते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो फिर तुम क्या करोगे एजुकेशन नहीं लोगे तो। आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस। मैं मिलान चला जाऊँ लेकिन मेरे फादर जो है मुझे डर लगता है कि वापस वो मुझे यहीं भेज देंगे। एंड हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। एंड अचानक से एल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड में एक सडन आइडिया आ जाता है। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछते हैं क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो। आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू सॉरी आई नो लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट। तो यूरी आंसर करता है कि यस, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली सेड यूरी। और यूरी कहता है उनमें से कुछ लोग मेरे फ्रेंड भी हैं। आई नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन वाई। एंड ये सब सुन के एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ओ डोंट यू थिंक दैट मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाके विजिट करूँ। सपोज सेड एल्बर्ट। फिर एल्बर्ट अपना आइडिया बताते हैं यूरी को। सपोज ऐसा हो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि अगर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो, सपोज या मुझे घबराहट या ऐसी कोई फीलिंग हो, तो सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स अ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल। अगर डॉक्टर ऐसा रेकमेंड कर दे, एडवाइस दे दे कि मेरे लिए स्कूल जाना अच्छा नहीं है, एंड आई नीड टू गेट रिड अवे फ्रॉम इट, तो मैं किसी तरीके से स्कूल से छुटकारा पा सकता हूँ। सो बेसिकली हियर this video students will end this video here, and I will start your third video with your new page, that is page number 28. Till then, stay safe all of you. Thank you.